کیونکہ وہ تو میدان میں نہیں تھی, گھوڑوں کی ریس تھی, اور کہا جا رہا ہے کہ مطلب ایک گھوڑوں کی ریس ہو رہا اور اس میں اعلان ہو کے گدھا جیت گیا ہے, مطلب کچھ اس قسم کی چیزیں چل رہی. تو آپ کو کیا امید تھی؟ مجھے امید تھی کہ کچھ ججوں کی طرف سے ایسا فیصلہ آئے گا. دیکھیں ظاہر ہے ہم پروسیڈنگ لائیو دیکھ رہے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے اوپر کہ انہوں نے ہمیں لائیو پروسیڈنگ دکھائی, اس کی وجہ سے عوام کے سامنے ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی. تو اس وقت 2-3 جج ایسے تھے جن کے بارے میں لگ یہ رہا تھا کہ وہ فوراً اتریں گے, اپنا گاؤن پھینکیں گے اور وکیل والا پہنیں گے اور پی ٹی آئی کی طرف سے دلائل دینا شروع کر دیں گے. وہ سب نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے وکیل جو تھے کتنے بری طریقے سے اپنا جو کیس تھا وہ لڑ رہے تھے, ان کے پاس آرگومنٹ میں نہیں تھے, ان کے پاس ججز کے سوالات کے جواب نہیں تھے, تو ان کو لک میں دیے جاتے تھے بنا کے, ان کو بتایا جاتا تھا. تو وہ مجھے لگ رہا تھا کہ آئیں گے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں پرویز بھائی, ہمارے یہاں پہ کورٹ رپورٹرز کا ایک گروپ بن گیا نا, مخصوص گروپ, انہوں نے ایک پریشر گروپ اپنے آپ کو بنا لیا ہے. وہ ایک ہوا چلا دی گئی تھی کہ جی ایک ایکسٹینشن ہو جانی ہے جس کی وجہ سے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے گی, جبکہ کل اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا تو مجھ سے پوچھا چیف جسٹس صاحب نے, تو میں نے ان کو کہا کہ ہم ایسا نہیں سوچ, اس نے کہا اگر سوچیں گے تو آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. لیکن یہ جو کورٹ رپورٹر تھے انہوں نے ایک ہوا بنا دی جس کی وجہ سے انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا, انہوں نے پریشرائز کیا. منصور علی خان جو تھے اس کو جیسے ڈر گئے, وہ ڈر گئے کہ کہیں پتہ نہیں میری چیف جسٹس جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی, قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ جج بنیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیو کی ایک خاتون رپورٹر تھی, انہوں نے یہاں تک کہا تبصرہ کرتے ہوئے کہ قاضی کو تو اس کیس میں بیٹھنا نہیں چاہیے, کوئی بینیفیشری ہے. اب آپ ان سے پوچھیں کیا بینیفیشری وہ کس چیز کے ہیں؟ کیا ایسا کوئی بل کسی پارلیمانی کمیٹری میں آ چکا ہے؟ کیا حکومت نے اس کو انٹروڈیوس کروا دیا ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی بات ہو رہی؟ جب کچھ بھی نہیں ہے تو مفروضوں کے اوپر ایک ہوا بنا دی گئی تھی جس کی وجہ سے اطہر من اللہ, وہ قاضی منصور جو تھے, وہ منصور علی خان جو تھے وہ ہو گئے, ایک اور جج تھے ان کے بارے میں. تو 5 کا یہ گروپ جو تھا مکمل تھا. سب کا خیال تھا کہ 6-7 سے فیصلہ آئے گا. ہوا یہ ہے کہ جو آپ کو عمر چیمہ کی بھی جو ہے وی لاگ ہے, اس کے علاوہ لوگوں نے بتایا کہ 2 جج ایسے تھے جو کراچی سے جن کا تعلق تھا, جو ایک وہ بلے والے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے اس میں بھی قاضی صاحب کے ساتھ تھے, ان کے بارے میں یہ تھا, اور وہ قاضی صاحب کے ساتھ تھے بدھ تک. جمعرات کو وہ سارے اچانک ہی اجلاس بلا لیا گیا اور اس کے بعد وہ بدل گئے, وجوہات کیا ہوئی, کیا سب چکر چلا, لیکن یہ اچانک ہی 11th آور کے اندر سب کچھ ہوا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قاضی صاحب فیصلہ کے لیے آئے ہیں تو ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی. وہ اس وجہ سے تھی پرویز بھائی کہ ان کے سامنے آئین ٹوٹ رہا تھا, آئین کو مسخ کیا جا رہا تھا, وہ اس کے اوپر پریشان تھے, کیونکہ وہ اگر ہم ان کا کریے دیکھا جائے چیف جسٹس, انہوں نے آئین اور قانون سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیں ان کے اوپر اتنی تنقید کر, ایک مخصوص کورٹ رپورٹر کا جو گروپ ہے انہوں نے ایک جو اپنا گینگ بنایا, وہ اس کے ذریعے ان کے اوپر تنقید کرتا ہے, ہر وقت ان کے اوپر تنقید کرتا ہے. پی ٹی آئی نے اپنے ٹرولز چھوڑے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ بھی ان کے جو صحافی ہیں ان پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آئین اور قانون سے ہٹ کے فیصلہ نہیں کرتے. کوئی بھی ان کے فیصلے میں آئینی قانونی کسی شک سے وہ نہیں کر سکتے, ہمیشہ تنقید ہوتی تھی, سیاسی ہوتی. ایون اطہر من اللہ صاحب نے بھی آف دا ریکارڈ کچھ صحافیوں کو یہ کہا کہ بلے والا فیصلہ ٹھیک ہے لیکن میں ہوتا تو الیکشن کے بعد دیتا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو سیاسی فیصلے ہوئے. آپ نے آئین اور قانون کو دیکھنا کہ آپ نے سیاست کو دیکھنا. بھی کہتے ہیں جی مکمل انصاف ملا. آپ انصاف کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, آپ آئین قانون کے تحت چلنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو پھر آپ کی اگر یہ بات دیکھا جائے کہ 11th آور میں یا آخری کچھ 1-2 دنوں میں یہ سب کچھ ہوا ہے, تو 1-2 دن پہلے تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جو یہ سیٹیں ہیں وہ تحریک انصاف کو ڈائریکٹ دے دی جائیں. تو یہ تو انہوں نے کورٹ میں کہا نا اس بات کو. تو کیا یہ اطہر من اللہ صاحب اس سارے کے پیچھے ہو سکتے ہیں ڈرانے والے, بتانے والے, کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قاضی صاحب 3 سال لگا دیں؟ سر مجھے ایک بات بتائیں پرویز سندھیلا بھائی, کہ کل جب یہ فیصلہ آیا ہے, شہباز گل نے ایک مووی کا سین اٹھایا تھا جس میں ایک ایکٹر ناچتا ہوا نکل رہا ہے عدالت سے, اس نے کہا کہ اطہر من اللہ فیصلہ سنانے کے بعد. یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ ان کی طرف سے خود ہی ایک انڈیکیشن دے دی گئی ہے کہ یہ ایک سیاسی جج ہے, اور یہ جج جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہے. اس جج نے سب کچھ مینج کیا ہے. اور مجھے تو یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ تھے, پہلے دن ان کے پاس کوئی دلائل نہیں, کوئی کاغذ نہیں, بعد میں وہ چیزیں لا رہے ہیں, دلائل لا رہے ہیں, آخری دن کہاں سے؟ کیا پتہ ان کو کیس بنا کے دیا گیا ہو,
बीच में इतना लंबा लंबा गैप आया, उनको आर्गुमेंट दिए गए हो, उनको बताया गया हो कि अब आपने अदालत आके ये बोलना था कि इसको बुनियाद बना के हम कोई फैसला कर सकें। हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, शहबाज गिल ने खुद ही पोल खोल दिया है। उसने क्यों नहीं मंसूर अली शाह को क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि फैसला तो मंसूर अली शाह ने सुनाया, हेड तो वो कर रहे थे। उसने अतर मिनल्लाह का क्यों वो लगाया? फिर देखें, अतर मिनल्लाह की एक सियासी वाबस्तगी है, ये मैं नहीं कहती, एजाज सैयद ने खुद अपने वीलॉग में टॉक शॉक में कहा था कि जब इमरान वजीर आजम थे, अतर मिनल्लाह का उनके साथ टेलीफोनिक राब्ता था। जी ये एजाज सैयद ने ये बात कही हुई है। फिर देखें, बात ये है कि पीटीआई से इतनी गलतियां हुई हैं, जब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए? जब इमरान वजीर आजम थे तब से ये बात थी, और चीफ जस्टिस ने बार बार ये अपनी जब बल्ले वाली बात वो डिसीजन की बात करते थे, वो कहते थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए थे इन्होंने, और ये तब से उनको कहा जाता जब इमरान खान वजीर आजम थे। उसकी वजह ये थी कि जब इन्होंने पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे, उस वक्त वो जो इनके थे ना, वो जस्टिस वजीउद्दीन, आप उनकी रिपोर्ट पढ़ लें कि इसमें पैसा चलता था, इसमें लोग नाला थे। इसी वजह से इमरान खान ने नहीं करवाया कि कहीं पे कोई बगावत ना हो जाए, कोई रिजेंटमेंट ना आ जाए, ये मेरे किसी नॉमिनेट किए हुए बंदे के ऊपर ऑब्जेक्शन ना आ जाए, उसको वोट ना मिले। दावा तो बड़ा करते हैं ना, हमारे 80 लाख मेंबर है, बड़ा जमहूरी तरीके से होता है, लेकिन उसके बाद से उन्होंने नहीं करवाए जो एक दफा करवाए। फिर अभी भी जब करवाए तो उनसे पूछा जा रहा था कि कहाँ करवाए हैं, वो चमकनी के किसी एक छोटे सी जगह पे। मसरत हलाली ने कहा कि क्या आपने नॉमिनेशन जमा करवाए? नहीं, किसी ने करवाए नहीं है। अच्छा, आपने इसकी फीस होती है अदा की थी तो रसीद कोई नहीं, कैश दिया था। अच्छा, वहां पे लोग क्यों नहीं आए थे? लोगों को बताया क्यों नहीं? किसी सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। डिटेल जजमेंट में सब कुछ बताया हुआ है। फिर बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा कि हमें इसके बाद मखसूस नशिस्तों का मसला पड़ेगा। तो काजी फाइज ईसा ने उनको कहा कि जब आपको मसला पड़ेगा आप हमारे पास आए। ये क्यों नहीं गए? देखिए, इनके वकील खुद ना लायक हैं, इनके वकीलों को तैयार हलवा इसमें तो जजों ने करके दिया। जजों ने इनकी सारी नाकामियों पे पर्दा डाला है कि आपको अगर जो उसने आजाद कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने, आप क्यों नहीं कोर्ट के पास आए? आपके पास टाइम था ना, 13 जनवरी को आया है, उसके बाद 8 फरवरी, आपके पास कितना टाइम था? आप क्यों नहीं आए सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमें आजाद डिक्लेयर कर देगा? आपके फैसले में तो ऐसी कोई बात नहीं। मखसूस नशिस्तों के लिए आप क्यों नहीं आए सुप्रीम कोर्ट के पास कि आपने हमें कहा था कि हमारे पास आना? ये सारी चीजें जजों ने उनसे नहीं पूछी है। फिर वो एक पार्टी के अंदर चले गए हैं, कहा जा रहा है कि नहीं, उस पार्टी को छोड़े, आप ही आए। अच्छा, एक और आईनी बहरान ये भी है कि इलेक्शन कमीशन कह रही है कि जिन 39 लोगों को आपने कहा है कि ये पीटीआई के लोग हैं, उन्होंने ना कोई एफिडेविट जमा करवाया, ना उन्होंने पार्टी को कोई टिकट हमारे दिया, हमारे रिकॉर्ड में तो नहीं है। अगर नॉमिनेशन पेपर में किसी ने लिख दिया वाबस्तगी पीटीआई हो तो नहीं जाता ना। आपको पता है 4-4 लोग पीटीआई के कागजात जमा करवाते हैं या किसी भी पार्टी के करवाते हैं, क्योंकि उसके बाद टिकट किसी एक को मिलता है, जिसको टिकट मिलता है वही पार्टी का कैंडिडेट होता है। तो अगर किसी ने उसको पीटीआई लिख दिया है, उसको नहीं मिला हुआ टिकट, तो आप कैसे कह देंगे ये पीटीआई का बंदा होगा? कोई टिकट नहीं, उन्होंने कोई एफिडेविट नहीं जमा करवाया, तो कैसे हो जाएगा? ये सारी चीजों को एक साइड पे रख के अदालत ने आइन को रीराइट किया। इन्होंने पहले भी आइन को रीराइट किया था जब 63A का मामला था, उस वक्त भी पहले इन्होंने कह दिया कि पार्लियामेंट कह रही है कि वोट गिना जाएगा, ठीक है, लेकिन आप उसको डी सीट करेंगे। इन्होंने कहा वोट भी नहीं गिना जाएगा। ये कैसे हो सकता है? आपने एक तरह से तहरीक अदम एतमाद का रास्ता बंद कर दिया। जी आपने पार्लियामेंट के अंदर तहरीक अदम एतमाद का रास्ता बंद कर दिया कि यानी कि अगर कोई किसी को भी नाराजगी है, आपने जमहूरियत को खत्म कर दिया। अब आप इन दोनों फैसलों से देखिएगा, मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि जी पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को, पार्लियामानी जमहूरियत को क्या खतरे लाहक हो गए। आपने 63A के जरिए आपने डिक्टेटर बना दिया पार्टी के हेड को, यानी कि उसकी हर बात माननी है, आप उसकी किसी बात से डिसएग्री नहीं कर सकते। अगर आप वोट डालेंगे, आपका वो वोट भी नहीं गिना जाएगा, यानी कि पार्लियामानी लीडर को खतरा नहीं और आप डी सीट हो जाएंगे। तो हर कोई चुप करके उसी पे काम करता रहे। फिर आपने कहा पार्लियामानी सरबराह क्यों होगा? जिस वक्त चौधरी शुजात ने कहा कि हमारे बंदे उसको वोट डाले, तो फौरन कह दिया नहीं जी, हमने तो पार्लियामानी लीडर की बात की थी, क्योंकि उन्होंने पंजाब में गवर्नमेंट बना दी। आपने जमहूरियत को यहाँ पे नुकसान पहुंचाया, आपने अपनी हदूद से तजावुज किया। पार्लियामेंट के जो इख्तियारात थे उसके अंदर आप एंटर हुए और आपने पार्लियामेंट का आइन बनाने का इख्तियार आपने छीना। आपका काम सिर्फ तशरीह करना है, आइन को रीराइट नहीं करना। अब आप जो इस फैसले में आपने क्या करार दे दिया कि पार्टियां चाहे इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं, चाहे अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरियत ना लेके आएं, आप आजाद हैं, आप मादर पिदर आजाद हैं। पार्टियां जो है उनको कोई जमहूरियत कदर नहीं है। फिर आपने उसके बाद कह दिया कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो ठीक हो गई है, यानी कि इस पार्टी से हो तो इसको छोड़ो, दूसरी पार्टी के अंदर चले जाओ, कोई मसला नहीं है। जो आपने पहले 63A आर्टिकल लिखा था, आपने उसको भी खत्म कर दिया। फिर आप कह रहे एक बयान हल्फी दिया है, उससे मुकरो तो दूसरा बयान हल्फे दे दो।
फिर आपके आइन के अंदर लिखा कि आजाद उम्मीदवार जो होते हैं उन्होंने 3 दिन के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, इन्होंने इनको 15 दिन का 15 टाइम दे दिन दिया। तो हर जगह पे जो आइन है उसको पामाल किया गया। मुझे सिर्फ ये बात बताएं परवेज भाई कि अगर एक जर्नैल आइन को पामाल करता है तो हम कहते हैं कि आर्टिकल 6 लगाए, इसने पामाल किया, आइन को रोक दिया। जजिस करें तो फिर हम कहाँ पे जाएं, किसके पास जाएंगे, कहाँ जाके सुनवाई करेंगे? पार्लियामेंट का इख्तियार तो इन्होंने छीन लिया ना आइन में तरमीम करने का। वो उनको कोई उनकी की हुई तरमीमों को इन्होंने अपनी मर्जी से उसको बदल कर मस्ख करके रख दिया। तो जो एक आमिर कहता था कि मैं आइन को रद्दी का टुकड़ा समझता, उससे ज्यादा अहमियत नहीं देता ये मुशर्रफ, तो जजों ने भी यही कर दिया। फिर आप हमें बताएं कि आपने मुल्क को किस ज़ाब्ते के तहत चलाना है? अगर तो आपने सिर्फ इमरानी मोहब्बत के अंदर मुल्क चलाना है कि जो इमरान खान है, जो इमरान खान कहेगा वही आइन है, तो ठीक है, फिर हम मान लेते हैं कि इमरान खान को आप मुतल्लिकुल अनान एक बादशाह बना दें, उसको सारा इख्तियार दे दें कि भाई जो तुम कहोगे वो आइन है, जो तुम बोलोगे वही कानून है, और हम सब तुम्हारे सामने सरनुगु होके बैठ गए। तो फिर हम भी सारे इस बात को मान लेते हैं सब्र और शुक्र बंद कर करें, लेंगे। फिर ये सबर शुक्र पे बंद करें या डालते हैं। मेरे यहाँ आपके टैक्स पेयर से इनको लाखों में तनख्वाहें क्यों दे रहे हैं? 2000 बिजली के यूनिट क्यों दे रहे हैं? मैं महंगी बिजली खरीदूं, मैं 70 रुपए का यूनिट लूं और इनको 2000 यूनिट फ्री मिले, मुझे कोई टैक्स देने के बाद भी कोई सहूलत ना मिले, इनको रिटायरमेंट के बाद भी खानसामे मिले, ड्राइवर मिले, इनके बच्चों को हर सहूलत मिले, इनके आगे पीछे गाड़ियां मिले, इनको घर मिले, मैं टैक्स दे के भी ना रहूं, और ये आइन को पामाल करें, ये अपनी जाती ख्वाहिशात को लेकर चलें। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। या आप डिक्लेयर करें कि इस मुल्क को हमने बनाना रिपब्लिक बना दिया है, ये बेआइन मुल्क है, तो फिर ठीक है। और एक बात और देखें, साबित होगी एजेंसियों की मुदाखलत 6 जजेस ने खत लिख दिया। आप मुझे जब बताएं ना कि एजेंसियों की मुदाखलत जब होती है तो ऐसे फैसले आते हैं। एजेंसियों की मुदाखलत होती है ना तो बेटे को से तनख्वाह ना लेने के ऊपर लोग जो है ना नाअहल होते हैं। एजेंसियों की मुदाखलत होती है ना तो बेटी के साथ आप जेल में जाते हैं। एजेंसियों की मुदाखलत होती है ना तो आपकी बीवी बिस्तर मर्ग पे होती है तो आपको फोन करने की इजाजत नहीं मिलती है। एजेंसियों की मुदाखलत होती है ना तो किसी पार्टी के लीडर को मिलने नहीं दिया जाता और बेटी को बाप के सामने जो है ना वो गिरफ्तार किया जाता है। एजेंसियों की मुदाखलत होती है ना तो 14 साल के बाद एक बंदे की बच्ची पैदा होती है ना, हमजा शबाशी की बात कर रही हूँ, वो अपनी बेटी को 2 साल के बाद देखता है। एजेंसियों की वो मुदाखलत होती है ना तो शहबाज शरीफ जो होते हैं ना वो उसको कुर्सी नहीं मिलती नमाज पढ़ने के लिए। एजेंसियों की मुदाखलत होती है तो राना सनाउल्लाह पे चर्च हेरोइन का केस डाला जाता है और उसकी कमर में तकलीफ होती है और उसको चटाई पे लटाया जाता है, और ये सारी वीडियो जो होती है ना इमरान खान को दिखाई जाती थी। एजेंसियों की मुदाखलत होती है ना तो आपको एजेंसी का बंदा जज के कमरे से निकलता हुआ नजर आता है जिसको एक सहाफी पकड़ता है। एजेंसियों की मुदाखलत होती है तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी बोलता है और जस्टिस शौकत सिद्दीकी बताता है और उसको घर बिठा दिया जाता है। यहाँ पे लेटर आ रहे हैं, जाली डिग्रियां निकल रही हैं, जिनकी बेटियां जो है वो लोगों को कत्ल करती फिर रही हैं, वो सारे जज बैठे हुए हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेज ले रहे हैं, और फिर भी कहा जाए जी एजेंसियों की मुदाखलत हो रही है। तो ये एजेंसियों की मुदाखलत का जो आज बयानिया है ना, ये तो जमीन बोस हो गया। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि एजेंसियों की जो मुदाखलत वाला है कम से कम अगर था कभी तो अब नहीं है, ये बात साबितशुदा है। तो ये जो खत लिखे जा रहे हैं 6 जजों के एक करके वो भी मेरे ख्याल में प्रेशराइज़ करने वाला था। अच्छा मुझे ये बताएँ कि ये मैं उसके रीजन भी बता देती हूँ जी, परवेज भाई। बात ये है कि यहाँ पे सोशल मीडिया जो है और उसके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी जो पीटीआई के साथ मिले हुए और कोर्ट के रिपोर्टर, ये एक गैंग बन गया हुआ है मीडिया के लोग। जजिस को ये होता है कि जिनके करतूत अपने ठीक नहीं होते, जिनकी जाली डिग्री है, जिनके बच्चों ने कत्ल किए हुए हैं या जिनके और दूसरे स्कैंडल्स निकलते, तो उनको ये होता है कि जब हम फैसला भी इमरान के खिलाफ देंगे मेरिट के ऊपर तो हम उनसे भी गालियां खाएंगे, हम इधर से भी खाएंगे। तो वो कहते चलो हम कम से कम ये जो लोग हैं, जो कल्ट फॉलोइंग है, ये जो प्रेशर ग्रुप है, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो फंडिंग करके अपने मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं, हम इनकी नजर में तो हीरो बन जाएंगे और हमारे काले करतूत भी छुप जाएंगे। तो यही बात है ना। अब वो कल्ट फॉलोइंग बात क्यों नहीं करती है जाली डिग्री के ऊपर? अब वो कल्ट फॉलोइंग बात क्यों नहीं करती कि वो जो 2 मजलूम बाप यहाँ पे बैठे हुए जिनके बच्चों को कत्ल कर दे, जज की बीवी ने उसको इंसाफ मिले, वो उनकी नजरों में हीरो बनना चाहते कि चलो एक काले करतूत हमारे छुपे रहे। खत लिखने की असल वजह ये है कि काले करतूत छुपे रहे। पार्लियामेंट कहाँ है? इतना कुछ हो गया, इतना कुछ। देखें, अभी आपने जिस तफसील से बताया कि क्या-क्या नुकसानात होंगे, पार्लियामेंट कोई माने या ना माने, चाहे वो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ना माने, चाहे अदलिया वाली एस्टेब्लिशमेंट माने, लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम तो है, सबसे सुप्रीम अदारा भी है।
क्या जिम्मेदारियां हैं? किसी को हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि इस पे कोई पार्लियामेंट कुछ करने जा रही है आने वाले दिनों में। हुकूमत भी तकरीबन खामोशी बैठी हुई है। ये जो तारड़ साहब ने बात की और जिसका आपने हवाला भी दिया कि काजी साहब ने ये कहा था, ये तारड़ साहब पहले 15 दिन कहां सोते रहे जब इतना बड़ा एक बयानिया बन रहा था? सामने क्यों नहीं आए? काजी साहब के बारे में ये क्लियर क्यों नहीं किया कि मंसूर अली शाह जिस चीज से डर गए थे, शायद उनको ये खौफ ना आता अगर ये पहले क्लियर कर देते तो। परवेज भाई, यहाँ पे एक तल्ख बात है, लेकिन मैं करूंगी जरूर कि जो नवाज लीग है वो टोटली नाकाम है अपना नैरेटिव बनाने में और